Hello, students. After a long time, we are resuming our lecture with enzymology, and we will discuss our new chapter, that is enzyme kinetics. Now, in this model, this is the calculatory part. So, in this model, we are going to discuss about some general equations like Michaelis-Menten equation, or it is also known as the single substrate enzyme catalyzed reaction, the different plots, the significance of Km Vmax, and the different types of inhibitions like competitive, non-competitive, and uncompetitive inhibition. Okay, so let's start with our first point, that is single substrate enzyme catalyzed reaction, which is also known as Michaelis-Menten equation or equation. Before starting to the equation or derivation, we will see what is enzyme kinetics. So what are enzymes? Enzymes, this alters the rate of chemical reactions. They enhance the rate of chemical reaction without, means it, enzymes are required in very small amount. Okay, and these are reusable, recyclable. That are the enzymes. Now what is enzyme kinetics? Enzyme kinetics, it is the study of chemical reaction that are catalyzed by the enzyme. Means in enzyme kinetics, we study the chemical reaction, we calculate the rate of reaction, we calculate the velocity of the reaction catalyzed by the particular enzyme. Okay, so that is about the introduction of enzyme kinetics. Let's start with the single substrate enzyme catalyzed reaction or equation, Michaelis-Menten equation. Now this equation was started from scientist Henry in 1903. Then afterwards, Michaelis-Menten, he put forth the equation in the year 1913. The Briggs-Haldane scientist, he modified the Michaelis-Menten equation in 1925. So the equation is also known as modified form of the Michaelis-Menten equation, that is Briggs-Haldane equation. Okay, what this equation does, model serves to explain how an enzyme can cause kinetic rate enhancement of the reaction. Means in short, जो एम है एंजाइम काइनेटिक्स का, वही एम है माइकलिस मेंटेन और ब्रिग्स हाल्डन इक्वेशन का, कि रेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, ये हम मेजर करते, ये हम स्टडी करते हैं. ओके, सो दिस मॉडल हेल्प्स टू explain the kinetic rate of the reaction. Okay, so this is all about the Michaelis-Menten equation. Let's start with the equation, or we can say derivation for the Michaelis-Menten. तो शुरू करते हैं हम derivation. Okay, now the derivation is like this. जनरल जो रिएक्शन होती है, ओके, जनरल जो हम रिएक्शन देखते हैं, तो वो ओवरऑल रिएक्शन कैसी होती है, सिंपल जनरल इक्वेशन कैसा होता है फॉर एनी रिएक्शन, इट इज एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट. ओके, ये एंजाइम फ्री फॉर्म में है, ये सबस्ट्रेट फ्री फॉर्म में है. ओके, सो एंजाइम सबस्ट्रेट, नाउ इट इज कैटलाइज्ड, ये K1, it is catalyzed by K1. K1, it is the rate constant. Okay, enzyme substrate complex form होने के बाद it will turn that enzyme into the product. enzyme release हो जाएगा. Okay, and there is formation of the product. enzyme will be released and there is formation of the product catalyzed by the K1, K2, K-1, K-2. ये rate constant है. ठीक है, तो ये है जनरल रिएक्शन ओवरऑल. नाउ माइकलिस-मेंटेन में मॉडिफाई क्या है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऐसा है, माइकलिस-मेंटेन ने ऐसे बताया है कि माइकलिस-मेंटेन सेड दैट
during initial period of the reaction the product concentration is very low, or we can say is very negligible. Okay, and formation of ES from the product can be neglected or can be avoid or can be ignored. मतलब ये जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है वो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, माइकलिस मेंटेन का ऐसा कहना है इनिशियल पीरियड में। ओके, क्योंकि इनिशियल पीरियड में सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ओके, सो ये फॉरवर्ड रिएक्शन कैरी आउट होती है, तो सबस्ट्रेट इतनी अमाउंट में नहीं होता है कि वो रिवर्स रिएक्शन कैरी आउट हो। ओके, सो माइकलिस मेंटेन का ऐसा कहना है कि इनिशियल पीरियड में, स्टार्टिंग पीरियड में रिएक्शन के प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ये बहुत कम होता है, तो इसीलिए बैकवर्ड रिएक्शन ये अवॉइड की जाती है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन कैरी आउट होती नहीं है। तो माइकलिस मेंटेन की जो ये सेंटेंस थ्योरी है वो इस इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंट की है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट एंड देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट एंड देयर इज नो दिस बैकवर्ड रिएक्शन। ये बैकवर्ड रिएक्शन कैरी आउट नहीं होती इनिशियल पीरियड में ड्यू टू लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, और वी कैन से ड्यू टू लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्वेशन। हम इस इक्वेशन की मदद से आगे के इक्वेशंस डिराइव करेंगे और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन फाउंड आउट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन। नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन of ES. E stands for enzyme. I forget to tell you. E stands for enzyme, free enzyme. S stands for free substrate. ES stands for enzyme substrate complex and P stands for the product and this K are the rate constants. Okay, तो ये है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES मतलब ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES क्या है, वो इज इक्वल टू K1 इनटू फ्री एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ये जो मैं आपको ब्रैकेट में दिखा रही हूं इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो फ्री एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इनटू फ्री सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब ES कैसे फॉर्म हुआ है, बाय द फ्री एंजाइम प्लस बाय द फ्री सबस्ट्रेट concentration, that is the rate of formation of ES. ठीक है, और K1 is the rate constant. Next is the rate of breakdown of ES. Rate of breakdown of ES. ठीक है, क्या होगा रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES, मतलब ये ES का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द ES. सो फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ES दिस ES विल एक्ट एज द सबस्ट्रेट। ठीक है, ES क्या होगा, एक्ट एज द सबस्ट्रेट, मतलब ये प्रोडक्ट ES जो पहले इसमें प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वही एज अ सबस्ट्रेट एक्ट होगा। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, K-1 and then there will be फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब पहले रिएक्शन में ये रिएक्टेंट एक्ट हो रहा था और ये प्रोडक्ट हो रहा था। ओके, और बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एज अ सबस्ट्रेट एक्ट होगा एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ब्रेकडाउन के समय किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन। सो K-1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये अप्रोच है ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन का। Okay, the breakdown of ES complex to the product being too slow to disturb this equilibrium. Now under the condition rate of formation of ES is equal to rate of breakdown of ES. ठीक है,
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES। क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिकल लॉजिक है। ये दोनों इक्वेशन हम कंबाइन करेंगे, K1 ES इज इक्वल टू K-1 ES। कुछ नहीं किया है मैंने, बस ये दो इक्वेशन कंबाइन फॉर्म में किए हैं, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन, ये माइकलिस मेंटेन का एजम्पशन है, ओके। मीन्स माइकलिस मेंटेन एज्यूम दैट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिटवीन दिस फ्री एंजाइम फ्री सबस्ट्रेट एंड द बाउंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो according to this assumption there is formation of ES is equal to the breakdown of ES। अब हम क्या करेंगे, we will rearrange this equation, okay। हम rearrange करेंगे equation, that is K1 upon K-1 is equal to ES upon free enzyme concentration into free substrate concentration, ठीक है। ये हम करेंगे, हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट किया है, ठीक है। नाउ हियर व्हाट वी हैव टू डू, हियर वी हैव टू पुट दिस ES एंड E एज अ, ये जो हमने सॉरी ये नहीं, लेट मी राइट, मैं लिख ही देती हूँ। अभी हमको ये जो है K1 अपॉन K-1 we have to put instead of K1 upon K-1 we have to put KS। KS है आपका डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्या है ये आपका डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आप क्या करेंगे अभी यहाँ पर, मीन्स इंस्टेड ऑफ दिस यू विल पुट दी KS, ओके। आप क्या करेंगे, इसकी जगह KS डालेंगे, तो KS is equal to concentration of ES upon concentration of E into concentration of S, ठीक है। ये आपने डाल दिया, लेकिन अभी इससे ये रीअरेंज नहीं, ओके, दिस इज नॉट इन द रीअरेंज्ड फॉर्म, सो यू हैव टू रीअरेंज इट। तो आप इसको रीअरेंज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसे रीअरेंज करेंगे, तो हम पहले इसे यहीं रीअरेंज कर लेते हैं, गेटिंग माई पॉइंट। हम इसे यहीं पर रीअरेंज कर लेते हैं, अगर यहाँ पर किया तो भी ठीक है, यहाँ पर किया तो भी ठीक है, वी विल डू जस्ट रीअरेंजमेंट। यहाँ पर कौन सी रीअरेंजमेंट करनी है, हियर यू हैव टू गो फॉर इन्वर्टेंडो, ओके। किस पे जाना है आपको, इन्वर्टेंडो पे जाना है, ठीक है। यू हैव टू गो फॉर द इन्वर्टेंडो। तो आप अभी इन्वर्टेंडो पे जाएंगे, मतलब फाइनल इक्वेशन आपका कैसे होगा, मीन्स जस्ट यू हैव टू इन्वर्ट दिस, मीन्स दिस E विल गो, ये जो E है वो ऊपर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S विल गो अप एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES विल कम डाउन, ओके। दैट इज नोन एज द इन्वर्टेंडो, ठीक है। हम यहीं पर इन्वर्टेंडो कर लेते हैं, यहाँ पर इन्वर्टेंडो करने के बाद कैसे आएगा इक्वेशन, कैसे, इट विल कम लाइक दिस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। सो दिस इज द जस्ट सिंपल, इसके साथ भी हम कर सकते हैं K-1 अपॉन K+1, ठीक है। और फिर हम डालेंगे K-1 अपॉन K+1 इज इक्वल टू, निग्लेक्ट इट, ये हम बाद में करते हैं, ओके। K-1 अपॉन K+1 के जगह हम डालेंगे KS, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। फाइनल इक्वेशन हमें कैसे मिलेगा, वी विल कम टूवर्ड्स आवर फाइनल इक्वेशन। इन्वर्टेंडो के बाद हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा लाइक KS इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES, ठीक है। ये हमें मिलता है फाइनल इक्वेशन। नाउ
द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, अभी हमें टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम निकालना है. सो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम हम इंडिकेट करेंगे E0 से. ओके, सो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम E0 इज इक्वल टू concentration of free enzyme plus concentration of ES. ठीक है, ये हो गया आपका टोटल एंजाइम, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. वी विल रीअरेंज दिस, हम इसे रीअरेंज करेंगे. फ्री एंजाइम इज इक्वल टू टोटल एंजाइम माइनस ES कॉम्प्लेक्स. हमने यहाँ पर क्या किया है, रीअरेंज किया है. ओके, वी हैव जस्ट रीअरेंज दिस इक्वेशन. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. ओके, हमें इसकी वैल्यू कहाँ डालनी है, इक्वेशन 1 में डालनी है, सब्सटीट्यूट करनी है. तो हमें क्या मिलेगा, KS इज इक्वल टू, मतलब इसके E की वैल्यू हमें, ये जो E की वैल्यू है वो हमें इसमें डालनी है. सो वी विल गेट KS इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट. ओके, अपॉन ES. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल गया है. नाउ दिस इक्वेशन वी विल मल्टीप्लाई बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S. ओके, ये इक्वेशन हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, सॉरी, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S. ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन वी हैव पुट. हमने सिर्फ E की जो वैल्यू है दैट इज E0 माइनस ES वो डाली है इंटू S अपॉन ES. द अदर इक्वेशन इज सेम, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय दी S. वी गेट, हमें फाइनल मिलेगा E0 दैट इज टोटल एंजाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन ES. ठीक है, ये फाइनल हमें मिलेगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम क्या करेंगे, वी विल ये इससे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो इक्वेशन हमें मिलता है KS इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इज इक्वल टू, बाकी का सेम एज इट इज, टोटल एंजाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट माइनस ES इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है, बाकी का सेम एज इट इज. अभी हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, रीअरेंज, मैथमेटिकल रीअरेंज, जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम. तो रीअरेंज करके ये वैल्यू हम पहले लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S इज इक्वल टू KS इंटू ES. ओके, माइनस यहाँ पर आकर हो जाएगा प्लस concentration of ES into concentration of S. ओके, दिस इज जस्ट रीअरेंजमेंट हमने की है कि यहाँ पर लेकर माइनस यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, ES हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, तो हम ES कॉमन लेंगे, E0 into concentration of S, we will take ES as a common. तो हमने ES कॉमन लिया है इंटू KS प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ES इज कॉमन. ठीक है, हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES कॉमन लिया है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सेपरेट दिस ES, हमें ES इक्वेशन चाहिए. ओके, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इक्वेशन चाहिए. तो हम कैसे लेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट इज इक्वल टू E0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन KS प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S. ओके, ये हमने फाइंड आउट किया है एंड द रिमेनिंग इज बिन देयर. ओके, सो ये हमें फाइनल इक्वेशन मिलता है. दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन वी कैन से. अभी तक से हमें MM इक्वेशन मिला नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट दी MM इक्वेशन.
तो ये ES कॉम्प्लेक्स विल गो थ्रू, ये जो ES कॉम्प्लेक्स की वैल्यू हमने ढूंढी है, ओके, दिस ES कॉम्प्लेक्स विल गो थ्रू दी प्रोडक्ट एंड देन वेलोसिटी विल बी, ओके, ES जो है, जो हमने पहले जनरल रिएक्शन में देखा, मैं आपको बताऊं यहाँ पर, ये जो ES का हमें इक्वेशन मिला है पहले इनिशियल में, ओके, सो दिस ES कॉम्प्लेक्स विल गो थ्रू दी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो जो रेट है, वेलोसिटी है, वो हम अभी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो वो वेलोसिटी हम अभी डिटरमाइन करते हैं। आई एम टेलिंग यू नाउ दिस वेलोसिटी, that is it stand for the v0, okay, v0 is equal to k2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। मैं आपको फिर से दिखा दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, हमने ES का इक्वेशन डिराइव किया है। अभी दिस ES कॉम्प्लेक्स विल अंडरगो द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ओके, जिस रेट से वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जिस वेलोसिटी से वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, दैट विल बी K2, ओके, एंड दिस इट यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए ES विल एक्ट एज द सबस्ट्रेट। सो हमारा इक्वेशन हमने कैसे डिराइव किया है, V0 इज इक्वल टू K2 concentration of ES, okay, it's very simple. Now next is getting my point, ये हमें ये वेलोसिटी मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, we will just substitute the value, हम सिर्फ वैल्यू डालेंगे। let me write here, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, we will just substitute the V0 value, sorry, we will substitute the value of ES। अभी V0 is equal to K2, just put the value of ES, हम क्या करेंगे, put value of ES, क्या है वो वैल्यू, the value is K2 concentration of E0 into concentration of substrate upon Ks plus concentration of substrate, okay, so this this equation which we have got, it is the equation for the velocity, ठीक है। पहले हमें मिला एंजाइम सबस्ट्रेट का इक्वेशन, उससे हमें मिला V0 velocity equation, okay, so this is the V0। now we have to find the Vmax, अभी हमें फाइंड करना है Vmax, that is the maximum velocity, okay, Vmax it stands for the maximum velocity। अभी rate of reaction ये maximum कब होता है, when all the enzyme is in the form of the enzyme substrate complex, तब हम बोलते हैं it is the Vmax, ओके, तो यहाँ पर Vmax हम कैसे डिनोट करेंगे, Vmax is equal to K2, I told you that इट इज़ इन दी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब टोटल एंजाइम होता है, ओके, फ्री एंजाइम प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट इन द बाउंड फॉर्म। तो हम Vmax कैसे डिनोट करते हैं, K2 ऑफ टोटल एंजाइम, मतलब उसमें फ्री एंजाइम भी आएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी आएगा, ओके, सो दैट इज द Vmax। नाउ सी जनरल Vmax की जो टर्म अगर एक्सप्लेन करनी है, तो इन एनी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, मोस्टली कोई भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है, मोस्टली एंजाइम इज इन लेस अमाउंट एंड सबस्ट्रेट इज इन मैक्सिमम अमाउंट, इजंट इट। एंजाइम बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, एंजाइम इज इन लेस अमाउंट एंड सबस्ट्रेट इज इन लार्ज अमाउंट। सो द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल, द फैक्टर विच इज लेस, ओके, जो फैक्टर लेस होता है, इट एक्ट एज द लिमिटिंग फैक्टर, जो फैक्टर लेस होता है इट एक्ट एज द लिमिटिंग फैक्टर। अभी यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर क्या है, एंजाइम इज द लिमिटिंग फैक्टर। नाउ व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन दी डैट फैक्टर, ओके, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है उस फैक्टर पे। अभी यहाँ पर एंजाइम ये लिमिटिंग फैक्टर है, तो एंजाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है। तो एंजाइम क्या है, Vmax क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब एंजाइम ने
ऑक्यूपाई किया है सबस्ट्रेट को कंप्लीटली, इसीलिए मैंने यहाँ पर E0 दिया है। और K2 क्यों? बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद द सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट मतलब कौन सी सेकेंड स्टेट है? K2 की सेकेंड स्टेट है। सो आई हैव रोट हियर K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये Vmax की कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ Vmax। ओके, Vmax की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेट मी चेंज द पेन। तो वी विल गेट V0 इज इक्वल टू Vmax, मतलब ये जो K2E0 है यही ये वैल्यू है, दैट इज Vmax इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन Ks प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सो दिस इज आवर required इक्वेशन, दैट इज माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ओके, ये हमें मिलता है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन फर्दर मॉडिफाई किया गया है ब्रिग्स हाल्डन इक्वेशन में, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है ओवरऑल माइकलिस मेंटेन इक्वेशन which is very simple and easy to express. Okay, so this is all about the Michaelis Menten equation. In next video we will see the Briggs Halden equation. Thank you.